सो हैलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ 1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੋ, ਦੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ 1 ਹੈ, ਜਾਂ 0 ਭਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1/0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 0 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਜੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 12th ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੋਪਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇੰਪਰੋਪਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਪਰੋਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਪਰ। ਸੋ ਬੁਕਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ A ਤੋਂ B, ਠੀਕ ਹੈ, fx dx ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਫ 1 ਔਰ ਬੋਥ ਦਾ ਲਿਮਟਸ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਜਾਂ ਬੋਥ ਦਾ ਲਿਮਟਸ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਫੋਰਨ ਆਥਰਸ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਇੰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਇੰਡ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਦੀ ਇੰਪਰੋਪਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੋਪਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੋਥ ਲਿਮਟਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਇੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕਾਇੰਡ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਇੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ A ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, A ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ T ਰੱਖ ਲੈਣਾ, T ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੀਚੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਿਮਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ T ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ T ਮੈਨੇ ਸਮ ਅਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਤੇ ਲਿਮਟਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ T ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ T ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ T ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ T ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹੀ
टी अप्रोचिस टू माइनस इन्फिनिटी करके पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला टी अप्रोचिस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी करके एप्सिलॉन 2 कर लो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि तुहाडे कोल। मतलब पहली सिचुएशन साडी ये है कि अगर असीं बिना टेस्टां तो क्वेश्चन नूं करना है, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, अपर डेफिनेटली वड्डी हुंदी है, इस करके टी ए तो वड्डा जां इक्वल होगा, इक्वल ते तां आंसर 0 ही आ जाना ना, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने ख्याल रखना है। हुण आपां नूं पता की लग गया, हुण आपां नूं ये पता लग गया कि इंप्रॉपर इंटैग्रेशन दो तरह की इंटैग्रेशन नूं कहने आ। पहली जिस विच लिमिट्स नूं इन्फिनिटी अप्रोच किया जा रहा होवे, मतलब इंटैग्रेशन दी लिमिट्स बोथ इनफाइनाइट होण या एक इनफाइनाइट होवे। दूजी ऑप्शन विच साडे कोल ये कहा गया है कि जे साडे कोल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होवे। सो पहली ऑप्शन नूं असीं सॉल्व करन दा तरीका देख रहे हैं जी। अगर साडे क्वेश्चन विच किते ना किते इन्फिनिटी आ रही हैगी है तुहाडे कोल, तो उस केस विच आपां ने क्या करना हैगा, तुहाडे कोल उस इन्फिनिटी नूं हैंडल करन लई उत्थे टी या उत्थे एप्सिलॉन कोई नंबर दे देना हैगा और उसनूं अप्रोचिस टू इन्फिनिटी कर देना है। जे माइनस होया तो माइनस इन्फिनिटी, उस तो बाद जे फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आ गया तो हुण जिवें आ दो चीज़ां ने, तुसीं पहली कीती, पहली डाइवर्जेंट आ गई, इसनूं सॉल्व करन दी जरूरत नहीं है। अगर ये डाइवर्जेंट आ गई, चाहे कन्वर्ज हो चाहे डाइवर्ज हो, मतलब इंडिया इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी जुड़ना घटना तो कुछ है नहीं गा। सो इट मीनस अगर तुसीं लिमिट तोड़ के कर रहे हो, तुसीं एक इंटैग्रेशन पहला सॉल्व किया, वही डाइवर्ज आ गया तो दूजा करना नहीं। इस करके बैटर तरीका भी यही होंगे, I1 I2 लिख के उन्हें एक एक पार्ट सॉल्व करो, ठीक है जी। हुण आ गया आपां ने इस टाइप के उत्ते क्वेश्चनस किदां दे आउणगे, बड़े ठीक ठाक सौखे क्वेश्चन ने तुहाडे पास। बस ये दिक्कत की है कि +2 वाली इंटैग्रेशन सानूं आउंदी होवे। हुण एक तो इन्फिनिटी है, ठीक है जी, टाइप 1 है, तो तुसीं की कर लेना, लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी कर लेना है, 1 तो टी कर लेना, एक्स ई दी पावर एक्स के नाल तुसीं dx कर देना है। इस फॉर्म दे विच आपां लिख लिया जी। तो टी दी डेफिनेटली वैल्यू 1 तो बड़ी होनी, ईवन डेफिनेशन च उन्हें इक्वल पा दिता सी, पर श्योरली आ इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी नूं आपां इत्थे इक्वल नहीं पावांगे। सो टी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे डेफिनेशन च इक्वल लिखिआ है, बट वो ट्राइवियल केस ही है, होना यही चाहिए कि टी स्ट्रिक्टली, कारण प्रैक्टिकली आही पॉसीबल है। जे ए तो सेम हो जाए तो 0 आजू तो ऑलवेज कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है जी। हुण आपां ने पहला आईलेट लगाने, आपां वैसे आईलेट कोई रूल नहीं होंदा, पर क्योंकि पढ़ाया ही आपां नूं ये जांदा, ठीक है। सो पहले तो अलजबरिक आएगा तुझे कोल, दूजे ते पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, पहले दा डेरिवेटिव, दूसरा आ पूरा पोर्शन एज इट इज़ चलदा हुंदा ते नाल dx, इत्थे एक तो टी, इत्थे भी एक तो टी। सो बाहरले पासे आपां लिमिट लै लैंदे हां, लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी। सो ये वाली चीज़ आ जानी है जी तुहाडे कोल। पहला आपां इहनूं सिंपलीफाई कर लीए तां जो बाद सौखा रह जाए तुहाडे कोल। इत्थे टी आ जाएगा, ठीक है, इत्थे ई दी पावर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उस तो बाद तुसीं माइनस अगे लिखना है या माइनस एडजस्ट करना है, तुहाडी इच्छा है। पहला परता फिर माइनस हेठां हैगा, माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, ठीक हो गया जी। तुसीं जे आगे माइनस रखना है तां भी हो जाऊगा, जे नीचे एडजस्ट करना है तां भी हो जाऊगा। सो आगे लिखो तुसीं पहले माइनस, ठीक है, तो एवें कर लो, ब्रैकेट पा लो, फिर पास देख ये सारी बड़ी वाली होगी, माइनस बाहर काट लिया, फिर अपर अपर ए माइनस चला गया ना बाहर, ठीक है। तो अपर टी माइनस लोअर, लोअर विच 1 पर ना, सो ई दी पावर -1। सो इन्नी चीज़ आप लिख लिए जी, ब्रैकेट बंद कर दें। इत्थे माइनस माइनस प्लस हो गया, ई दी पावर -x दा फिर इंटैग्रेशन होना है, तो इत्थे आपां नूं 1 तो टी आ जाना। सो ये आ जाना माइनस माइनस आ वाला प्लस हो गया सी। सो ये टी हो गया, ई दी पावर -t हो गया, बाहर लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी हैगा ही हैगा। सो माइनस टी हो गया जी, माइनस माइनस प्लस ई दी पावर -1 हो गया जी। फिर हुण इत्थे भी अपर माइनस लोअर करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आ नैगेटिव बाहर लिखा लो, ई दी पावर टी आ जाएगा तुहाडे कोल, माइनस लोअर होएगा माइनस ई दी पावर -1 आ जाएगा। सो ये ब्रैकेट भी उस तरह रहेगी। सो जे आपां देखिए तुहाडे कोल इत्थे टी ई दी पावर टी, सो लिमिट टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी, सो ई दी पावर -1, तो इत्थे माइनस टी इत्थे, ठीक है जी। सो टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी। हुण जे तुसीं देखो आ तो दो ही बन जाना है, जो टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी है तो आ वाली चीज़ हैंडल करके देखो, तो टी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी है तो ये आ चीज़ है,
सो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 आ गया। एल हॉस्पिटल रूल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इत्थे टी दी पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ठीक है। मतलब अदरवाइज पहला टी दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आना सीगा तुहाडे कोल, जदों मतलब पहला तुसीं ऐ देखो फिर गुम जाओगे। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास जिहड़ा टी दी पावर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल टी ओ आ लिखिया मैं, ई दी पावर आ नीचे लै गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, डेरिवेटिव की होगा आह लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी की होंदा 0। सो इसने 0 आ जाना, इसने 2 टाइम्स ई दी पावर -1 आ जाना, इसने अगेन 0 आ जाना। सो ये 2/e आ जूगी जो कि फाइनाइट होगी तुहाडे पास, देयरफॉर ये इंटैग्रेशन कन्वर्जेंट होएगी। सो इदां आपां ने क्वेश्चन करना है। और तुसी एल हॉस्पिटल मतलब ये एक हिंट की है, हिंट तुसी एल हॉस्पिटल्स रूल है ना जिहड़ा एल हॉस्पिटल्स रूल लॉपिटल्स रूल कहते, ये कंसीडर करना है, क्योंकि कई बार बंदे दिमाग चों निकल जाता तो वो लिमिट ही नहीं भर पाता। सो इसका ख्याल रखना। तुहाडे कोल किताबां सीधा दिता होया 0 करके अगला परा करदा, आपां कन्फ्यूज हो जाने कि 0 बनी तो बनी किवें, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर दूजे ते आ गए जी आपां। सो दूजा क्वेश्चन जिहड़ा है 1 ओवर x है, तो इसनों फिर उही देखिया आपां की कीता लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 तो टी 1/x dx, तो इसदा आंसर आ गया तुहाडे कोल log x, ठीक है जी। सो 1 तो टी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो ये log t माइनस log 1 लिमिट जेड़ा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल टी लिमिट। अब log 1 थोड़ा 0 आ जाएगा, log टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट, सो ये log इन्फिनिटी हो गया। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होंदा हैगा तुहाडे को, तो ਇਹਦਾ मतलब ठीक है जी। log 0 माइनस इन्फिनिटी होंदा, ठीक है जी। सो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो फिर ये डाइवर्जेंट होगी जी तुहाडे कोल। सो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। हुण आ गया जी सपोज ई दी पावर -mx, एम नाल उसने पॉजिटिव दिता, तो ई दी पावर mx आ गया 0 तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नाल लिमिट लिख लो। सो ई दी पावर -x -m नीचे आ गया 0 तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट। सो 1/m बाहर कढ़ दिन्ने आपां, एम टी -1 टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो 1 ओवर ई 0 आ जाएगा। सो 1/m आंसर आ जाएगा इसका। और क्योंकि 1/m तुहाडे कोल फाइनाइट हैगा, इस करके मैनूं लगदा नहीं कि इस क्वेश्चन च कोई दिक्कत होएगी तुहाडे कोल। सो इसदा आंसर जिहड़ा हैगा वो कन्वर्जेंट आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो ये वाला पार्ट तुहाडा जिहड़ा हैगा हो गया। आपां जिहड़ा हैगा एक मिनट चैक कर लईए कि इसदा आंसर हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी, कन्वर्जेंट ही हैगा तुहाडे कोल। सो आंसर टैली कर गए जी उन्होंने दोनों के बुक चों। तो आपां नैक्सट क्वेश्चन ते आ जी। सो जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन दे विच तुसीं जे ध्यान नाल देखो तो सिर्फ इंटैग्रेशन बाय पार्ट तुहानूं ध्यान नाल करनी पैनी है। और दूसरी चीज़ तुसीं साइन कॉस वाले क्वेश्चन च एक चीज़ का जिहड़ा ख्याल रखना है वो ये हैगा है कि जदों तुसीं साइन नूं इन्फिनिटी लैने हो तो ऑसीलेटिंग वैल्यू आ जाती है, वो तुहाडे पास मतलब ये चीज़ ख्याल रखना एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होवे ते नाल साइन एक्स आ जाए। सो ये नो वैल्यू, मैं यदी वैल्यू नहीं दस सकता क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो को नो लिमिट है तुहाडे पास, फिर इसका मतलब तुसीं डाइवर्जेंट वाली सिचुएशन च जाओगे। तो ये चीज़ साइन कॉस वाले क्वेश्चन च ख्याल रखना, क्योंकि साइन -1 तो 1 चलाई करता, तुसीं ऐ भी नहीं कह सकते वैल्यू बहुत वध गई इन्फिनिटी ते चली गई, वो तो वैसे ही ऑसीलेटिंग है बेचारा -1 ते 1 च। हुण आपां आईलेट लिखिया ते जिहड़ा हैगा LATE, ठीक है जी। तो आई फॉर इनवर्स होंदा, एल फॉर लॉगरिथमिक होंदा, ए फॉर अलजबरिक होंदा, ये पहला आया। टी फॉर ट्रिग्नोमैट्रिक होंदा, ये दूजा आया। पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन, साइन दी इंटैग्रेशन क्या होंदी है जी माइनस कॉस, ठीक हो गया जी। पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, ठीक है जी। पहले का डेरीवेटिव ये ब्रैकेट सने जाना होंदा, ये बहुत सौखा तरीका है क्वेश्चन करन दा, 0 तो इन्फिनिटी ते 0 तो इन्फिनिटी, ठीक है जी। मतलब तुसीं टी लिख लो रे, इत्थे टी पा लो, इत्थे टी पा लो,
टी ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ कह लो। सो ये वाली चीज़ कर लो। सो जो टी इत्थे आ गया, सो ये नैगेटिव आ गया, टी कॉस टी आ गया, ठीक है जी। सो नैगेटिव टी कॉस टी आ गया, -0 ने तो कुछ नहीं करना हैगा, ठीक है, -0 आ गया। सो अगली चीज़ इत्थे लिमिट टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी आ गई। उस तो बाद माइनस कॉस इत्थे प्लस हो गया, कॉस की इंटीग्रेशन की बननी है साइन, ठीक है। एक्स अपर माइनस लोअर करना है, 0 तो टी करना है, तो साइन टी आ जाओ। अल्टीमेटली अपने को स्टोरी ये आई भी साइन टी माइनस टी कॉस टी आ गई, और टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी है। आ फैक्ट सीगा कि अगर एक्स अप्रोचिस टू इनफिनिटी होवे साइन एक्स होवे दी कोई वैल्यू नहीं। सो अल्टीमेटली ये जिहड़ी चीज़ हैगी है तुहाडे पास इहदी नो लिमिट है, जे दी लिमिट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, गल खत्म है, ठीक है। तो जे तुसी टी साइन टी नॉट डिफाइंड भी लिख दिता तो कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे पास, इसनों उन्होंने कंसीडर कर लेना हैगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, तो अपना क्वेश्चन ये भी हो गया। और मेरा ख्याल ये जिहड़े क्वेश्चन ने ना बस ये तो तुसी ऐ समझ लो एक मतलब फॉर्मैलिटी होंदी है भी तुसी कराने ने ना, तो इस पेपर च आना कोई, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन वाला तो पेपर विच भी नहीं आता। तो दूजा तरीका हैगा कि ना ही तुहानूं इन्हां च प्रॉब्लम आनी है, बट जे बंदा ना करवावे फिर ऐ लगता भी पहली एक्सरसाइज छड़ा ही दी, तो हर बुक च पहली एक्सरसाइज आही है, उस तो बाद दूजी एक्सरसाइज दूजी टाइप दी चीज़ों लई हैगी है, तो तीसरी जिहड़ी है फिर वो टैसट शुरू हो जाते हैं। सो अगर इदां दी चीज़ आ गई, इनफिनिटी आ गई, सो 0 तो टी आ गया, इत्थे टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी कर दिता। सो अल्टीमेटली मैनू यह पता होना चाहिए कि मेरा जो इंटीग्रेशन है की आना। सो -3 उत्ते लै जाऊँगा, -2 बटा -2 आएगा, ठीक है जी। सो 0 तो टी आएगी, टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी आएगा, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल -1/2 आ गया तुहाडे कोल, ठीक है। ये बाहर कढ़ दो तुसी, वो नीचे जाके पॉजिटिव होंदा तो 1 प्लस टी इहदा उपर स्केयर आ गया, माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे पास उसने जिहड़ा है। सो ध्यान नाल देखो जी की कर रहा तुहाडे को, आ तां पता तुहानूं भी 1 प्लस एक्स उपर -3 हो गया, एक ऐड हो गया, उन्ना ही थल्ले आ गया। आ बाहर कढ़ ली चीज़, जो आ बाहर कढ़ ली, आ हेठां आ गया पॉजिटिव हो गया। अपर भरोगे तो टी भरोगे वो आ गया, लोअर भरोगे तो -0 करोगे। सो ये वाली चीज़ आ जाए कि टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी है, लिमिट ये उत्ते लिख दो। आप टी अप्रोचिस ए 1/इनफिनिटी 0 -1/2 आ गया, तो ये फाइनाइट आ गया। जे फाइनाइट आ गया तो इत्थे तुसी कन्वर्जेंट कह दोगे। सो मेरा ख्याल है जी इदां दे क्वेश्चन हुण तुसी ये क्वेश्चन रुकणगे कदों, ये क्वेश्चन रुकण का एक ही कारण होएगा, वो कारण की होएगा तुहाडे कोल बई थानू इंटीग्रेशन भुल गई। जे इंटीग्रेशन भुल गई डेफिनेटली फिर तो क्वेश्चन रुकणगे, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं हैगा तुसी कहो भी इस तरह के क्वेश्चन किए तो तुहाडा क्वेश्चन रुक गया। से एक एग्जाम्पल होर ले लैंदे, ई दी पावर 4x है ना, तो यदा मतलब है तुसी पहला ई दी पावर 4x उरे -इनफिनिटी है, ठीक है जी। उरे तुसी टी कह दोगे, उरे लिमिट टी अप्रोचिस टू -इनफिनिटी कर दोगे, ठीक है। हुण इत्थे डी एक्स है, हुण तुसी ई दी पावर 4x कर दोगे, नीचे 4 कर दोगे, इत्थे टी इत्थे 0, इत्थे लिमिट टी अप्रोचिस टू -इनफिनिटी। सो पहला असीं 1/4 बाहर रख लैंदे, ई दी पावर 0 ने 1 दे देना, ई दी पावर 4t/4 आ जाना है ना। हुण जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो, उरे टी अप्रोचिस टू इनफिनिटी नहीं है, -इनफिनिटी है। सो -इनफिनिटी है टी अप्रोचिस टू, -इनफिनिटी मैंने 1/, चक्या जाए नीचे जाके नहीं चले जाना। सो ये 0 और 0, सो ये फाइनाइट आ जाएगा। तो जो ये फाइनाइट आ गया तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन दे विच आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अगला जिहड़ा क्वेश्चन आ गया वो अगले क्वेश्चन दे विच एक दी बजाय 2 लिमिट्स ने। सो जे 2 लिमिटां आईयां तो डेफिनेटली दोनों आही होणगियां, तो इन्हां दा सेंटर पॉइंट चूज़ कर लईदा जो कि हैगा 0। सो ये बहुत सौखा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सेंटर चूज़ करन दोनों इनफिनिटियां ने, मिड पॉइंट चूज़ करन च कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसदा मतलब हुण एक दी बजाय 2 सवाल हो गए जी तुहाडे कोल, ठीक है। एक ऑप्शन होर हो जूगी इस क्वेश्चन नूं करन दी, एक तो तुहाडे कोल आ ऑप्शन होगी कि तुसी 2 सवाल कर ले तो तुसी इनू जिहड़ा हैगा है तुहाडे पास इनू तुसी पिछले वाले तरीके नाल यूज़ कर लो, तो इनू तुसी भाई तुसी -इनफिनिटी वाला +इनफिनिटी वाला 2 क्वेश्चन कर ले तो तुसी कर लो। बैटर वे की हैगी है, एक बैटर वे होर है, वो बैटर वे की हैगी वो फिर इक्के सॉल्व करना पऊगा। बैटर वे की है कि 1 + x² है ना,
ये ਈਵਨ फंक्शन है क्योंकि इंटैग्रल ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x ਚੇਂਜਸ ਟੂ -x ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ dx ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 0 ਤੋਂ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ dx ਇੱਥੇ 1 + x² ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਜਾਏਗਾ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੋਂ t ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੈਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ t ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 0 ਲਿਮਟ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ π/2 ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ x² ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ t ਨਾ ਕਰਨਾ y ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ t ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x² ਨੂੰ y ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ठीक है इतने 2x dx बराबर है dy आ जाएगा सो dx की वैल्यू आ जाएगी x dx की वैल्यू dy/2 आ जाएगी जो x 0 है 0 इनफिनिटी इतने तो कोई फर्क नहीं पिया पर e की पावर -y आ गया तो नाल dy/2 आ गया सो ये चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल क्योंकि जो x 0 है तो y भी 0 आ जाएगा जो x इनफिनिटी है तो y भी इनफिनिटी आ जाएगा ठीक है जी सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल तो तुसी कर ली उस तो बाद तुसी x dx की वैल्यू dy/2 कर ली हुण मेरा ख्याल है कि तुसी इस क्वेश्चन आराम ना कर सकते e की पावर y dy 0 तो हुण तुहानूं लगन लग गया कि इंप्रॉपर इंटैग्रेशन हैगी है सो जे इंप्रॉपर इंटैग्रेशन हैगी है तो इसकी डेफिनेशन आपां लगा लांगे सो मेरा ख्याल है जी आराम नाल इसकी डेफिनेशन भी लग रही है तो तुहाडा सवाल भी हो रहा है क्योंकि हुण तुसी इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां लिखिया ठीक है तो वैल्यू जी हैगी है तुहाडे कोल टी बन गई तुहाडे कोल तो हुण आपां ने इसनूं सॉल्व करन लई की करना हैगा लिमिट चेंज करनी पऊगी कि इत्थे 0 तो टी कर देंगे ठीक है जी जो इत्थे टी कर देंगे या फिर इंटैग्रेशन तुसी ज़्यादा इंटैग्रेशन करके वैल्यूज़ पुट कर लेना या आपां तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है पहला पुट कर लीए उन्ना कोई फर्क नहीं पैना हैगा बट जिहड़ा हैगा है तुसी इंटैग्रेशन पहला टी दी टर्म च कर लो फिर तुहानूं वैल्यू चेंज नहीं करनी पेगी सो माड़ा जिहा इस क्वेश्चन नूं देख लिओ जी हुंदा कुछ नहीं पर बैटर यही है भी तुसी इसनूं इदां लिख लो 0 तो t अप्रोचिज टू इनफिनिटी लिमिट x e की पावर x² dx सो अल्टरनेट दे रहा जी मैं थोनों क्योंकि पहला नहीं मैं पूरा किया क्योंकि इतने बच्चे में कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं जी विद रिस्पैक्ट टू y कर रहा मैं टी नूं तो इत्थे हट जाएगी कि तुसी शुरू तो लिया हो एवें भी जाना तो तुसी टी एवें लिया तुहाडे कोल इत्थे तुसी जदों x² नूं y पुट करदे हो तो 0 ते 0 उरे t² आ जाएगा ठीक है लिमिट t अप्रोचिज टू इनफिनिटी ही रहनी है तो इत्थे बाकी जिहड़ा सारा सिस्टम है e की पावर -y 1/2 dy वो कुछ नहीं फर्क पैना हैगा ठीक है सो ये 1/2 y आ गया तो यदी माइनस आ गई तुहाडे कोल -1 आ गई 0 तो t² हो गया तो आ तुहाडी वैल्यूज़ आ जानियां हैगियां ठीक है और हुण t अप्रोचिज टू इनफिनिटी सो तुसी लिखोगे इत्थे नैगेटिव कर लोगे इत्थे e की पावर t² आ जाएगी जी माइनस जिहड़ा हैगा 1 आ जाएगा t अप्रोचिज टू इनफिनिटी है t² भी इनफिनिटी तो हो जाएगा 1/इनफिनिटी सो ये वाला कन्वर्जेंट आ जाएगा सो इस तरह तुसी क्वेश्चन कर लियो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ठीक है
इस तरह भी करोगे आंसर आएगा श्योरली, चेक करके देख लेना। तो सिमिलरली तुसी इसनों टी पुट कर लेना, लिमिट्स चेंज कर लेना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, नैक्सट अगली टाइप पढ़ांगे। थैंक यू।